morning everyone, welcome back to our classroom. Today I am going to teach you a new poem from unit 2 which name is I am lucky. So let's take out your textbook, page number 20 and listen carefully. I am lucky. I am lucky. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could see. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with the glee. So, I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So, I just think I am lucky to be me. Not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me? Or just you? Just you. I am reciting this poem again. I am lucky. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So, I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So, I just think I am lucky to be me. Not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me? Or just you? Just you. Okay student, here is a poem which name is I am lucky. Means how lucky I am. कि हम कितने खुशनसीब हैं. Here are some pictures you have seen. A butterfly, a myna, a fish, a girl, an elephant, an octopus or a kangaroo. Okay? The butterfly says, the bird says, if I were a butterfly, I would be thankful for my wings. अगर मैं एक बटरफ्लाई हूँ तो मैं अपने विंग्स कहा जाता है परों को, तो मैं अपने पर के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. अगर मैं एक मैना हूँ तो मैं अपनी आवाज़ के लिए गॉड को थैंकफुल रहूँगी क्योंकि मैं गा सकती हूँ. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. अगर मैं एक समंदर में रहने वाली फिश मछली हूँ तो मैं गॉड को थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने मुझे किसी रिगल कहा जाता है किसी भी तरह मुड़ना. फिश जो होती है आपने देखा है कि वो बहुत क्विकली किसी भी तरफ टर्न हो सकती है, तो मैं गॉड को थैंकफुल रहूँगी कि वो उसने मुझे में इतनी कैपेसिटी रखी है कि मैं किसी भी तरफ रिगल यानी किसी भी तरह मुड़ सकती हूँ. और गिगल कहा जाता है खुश होना, और मैं अपने इस कैपेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. फिश कह रही है कि अगर मैं मुझ में ये कैपेसिटी है कि मैं किसी भी तरफ मूव हो सकती हूँ, तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. गिगल एंड विथ ग्ली मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना या हंसना. So I just think I am lucky to be me, not you but me. ये गर्ल कह रही है कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ. मुझ में भी
कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होंगी। मुझ में तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है। जिस तरह बटरफ्लाई अपने विंग्स की वजह से खुश है, मैना अपनी सिंगिंग की वजह से खुश है, और फिश जो है अपने किसी भी तरफ टर्न होने की वजह से खुश है। तो ये गर्ल भी कह रही है कि मैं अपने आप के होने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह, मतलब वो कह रही है दूसरों से कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं खुद की तरह हूँ। If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. अब यहाँ पे एलिफेंट हाथी जो है वो कह रहा है कि मैं अपने ट्रंक, ये जो हाथी की सूंड होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड से कि गॉड ने मुझे इतनी बड़ी ट्रंक दी है, इतनी बड़ी सूंड दी है जिसको मैं कितनी भी ऊंचाई पर उठा सकता हूँ। और आपने हाथी को देखा होगा, हाथी अपनी सूंड जब हिलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एलिफेंट कह रहा है कि मैं गॉड को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रंक दी। इफ़ आई वेयर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप। अगर मैं एक कंगारू हूँ तो मैं गॉड को थैंकफुल हूँ कि मैं कितनी भी ऊंचा कूद सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। राइड अप टू द मून, मैं मून तक जा सकता हूँ। इफ़ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। अगर मैं एक ऑक्टोपस हूँ तो मैं अपने 8 आर्म की वजह से, इसको 8 आर्म होते हैं ऑक्टोपस को, तो इसकी वजह से मैं गॉड का थैंकफुल हूँ, क्योंकि और किसी एनिमल को 8 आर्म्स नहीं होते हैं। ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जिसे 8 आर्म्स होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग को 2 लेग्स होते हैं, काऊ को 4 लेग्स होते हैं, और बहुत से जानवर हैं जिनको 4 लेग्स होते हैं, लेकिन ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जिसको 8 आर्म्स होते हैं। तो ऑक्टोपस अपनी इस खूबी की वजह से गॉड का थैंकफुल है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। ये गर्ल कह रही है कि मैं अपने होने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं हूँ। What do you think you want to be? अब आप क्या चाहते हो? Do you want to be like me? क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो? और just you, या फिर खुद की तरह, सिर्फ खुद की तरह। ओके? तो ये पोएम में हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। बटरफ्लाई, माइना, फिश, कैंगरू, ऑक्टोपस। बटरफ्लाई कहा जाता है तितली को, मैना कहा जाता है मैना को, फिश कहा जाता है मछली को, कैंगरू कहा जाता है कंगारू को, और ऑक्टोपस कहा जाता है समंदरी एक जानवर को जिसके 8 आर्म्स होते हैं। ओके, हियर आर ऑल्सो सम वर्ड्स यू हैव टू अंडरलाइन इट। द फर्स्ट वर्ड यू हैव टू अंडरलाइन इज बटरफ्लाई, BUTTERFLY, butterfly. Another word is thankful, THANK, thank, FUL, thankful. The next word is wings, 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 जिसके मीनिंग होते हैं पर। बटरफ्लाई के मीनिंग होते हैं तितली, थैंकफुल के मीनिंग होते हैं शुक्र करना, विंग्स के मतलब होती है पर। Another word is मायना, MYNA, मायना कहा जाता है मैना को, जो काला सा एक परिंदा होता है। वैसे तो क्रो भी काला ही होता है, लेकिन मैना अपनी आवाज़ की वजह से जानी जाती है, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। अ ट्री मीन्स होता है पेड़, TREE, ट्री, जिसकी मीनिंग होती है पेड़। द नेक्स्ट वर्ड इज सिंग, SING, सिंग मीन्स होता है गाना। अनदर वर्ड इज फिश, FISH, फिश, जिसके मीनिंग होते हैं मछली। द नेक्स्ट वर्ड इज सी, SEA, सी मीन्स होता है समंदर। अनदर वर्ड इज रिगल, WRIGGLE, रिगल, जिसके मीनिंग होते हैं किसी भी तरफ मुड़ना या टर्न होना। गिगल, GIGGLE, गिगल, के मीनिंग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होना। ग्ली, GLEE, जिसके मीनिंग होता है लाफिंग, यानी बहुत ज़्यादा खुश होकर हंसना। द नेक्स्ट वर्ड इज लकी, LUCKY, लकी के मीनिंग होते हैं खुशनसीब।
The next word is elephant. ELEPHANT. Elephant means hathi. Another word is race. RAISE. Race means उठाना. Trunk. TRUNK. ट्रंक. ट्रंक मीन्स होता है सूंड. हाथी की सूंड को ट्रंक कहा जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज कैंगरू. KANGAROO. कैंगरू. कैंगरू एक एनिमल होता है इस तरह जो हॉप करता है. नेक्स्ट वर्ड इज ट्राई. TRY. ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना. द अनदर वर्ड इज HOP. हॉप मीन्स होता है कूदना. The next word is octopus. 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 octopus कहा जाता है समंदरी जानवर जो कि एक आर्म्स वाला होता है. आर्म्स. ARMS. आर्म्स मीन्स होता है बाजू. The another word is want. want मीन्स चाहना. like मीन्स की तरह या पसंद करना. Write down these words in your notebook. Okay. In this poem, there are some names of animals that are butterfly, myna, fish, elephant, kangaroo, and octopus. Here are the names of 8 animals. You have to write these names in your notebook. Okay. Now move on to the next page. Here is the table which you have to complete. Reading is fun. Complete this sentence. Columns, animals, action. There is the names of some animals and there are some actions. You have to complete this table. The first one is given to you. A butterfly can fly. Butterfly जो है तो वो उड़ती है इसलिए यहाँ लिखा हुआ है can fly. The next one is मैना. मैना जो है तो सिंग करती है तो यहाँ आप लिखेंगे CAN. SING सिंग. मैना कैन सिंग. द नेक्स्ट वन इज हियर इज अ ब्लैंक और जिसके सामने लिखा हुआ है कैन रिगल तो हम यहाँ लिखेंगे अ फिश. FISH फिश. ओके. एन एलिफेंट. एलिफेंट क्या करता है कैन रेज ट्रंक. यहाँ हमने देखा था कि एलिफेंट अपनी ट्रंक को रेस कर सकता है तो यहाँ लिखेंगे हम कैन रेस ट्रंक. ओके. यहाँ लिखा हुआ है कैन हॉप. हॉप कौन करता है हमने पीछे देखा है कि कैंगरू. लिखेंगे हम अ कैंगरू. KANGAROO कैंगरू. एंड यू. आप तो सब कुछ कर सकते हो तो यहाँ लिखेंगे हम कैन डू एवरीथिंग. ओके. Complete this paper. Now move on to the next. Let's talk. Here are some questions. You have to answer this question. Why do you think the butterfly likes its wing? Why do you think the butterfly likes its wing? Butterfly क्यों अपने परों को पसंद करती है? इसका आंसर आप दे सकते हो because. यहाँ आप आंसर दे सकते हो because butterfly can fly with their wings. Okay. Butterfly can fly with their wings. So she likes their wings. Another question is what can the myna do? मैना क्या कर सकती है तो आप लिखेंगे यहाँ मैना कैन sing. मैना कैन sing तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैना कैन sing. नेक्स्ट वन इज व्हाट कैन यू डू? sing, paint, write. आप क्या करते हो? यहाँ लिखा है आप क्या करते हो.
आप अगर सिंग करते हो, गाना गाते हो, तो यहाँ आप सिंग लिख सकते हो। पेंट करते हो तो आप लिख सकते हो कि आप पेंट करते हो। राइट, या आप कुछ लिखते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो राइट। आई कैन राइट, आई कैन सिंग, आई कैन पेंट, आई कैन फ्लाई, वट एवर यू कैन डू, यू हैव टू राइट। The next one is, do you think the fish was really happy to be in the water? क्या आपको लगता है कि मछली जो है वो पानी में रहने से बहुत ज़्यादा खुश है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं yes. Fish was really happy to be in the water because she can giggle, wriggle with glee. Okay? The next question is, what are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है या आप किस लिए अपने आप को लकी मानते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। ओके, सो हियर इज द पोएम वाज इन। Let's move on to the next page, page number 23. Here is the few lines about the kangaroo imagination. Kangaroo की imagination के बारे में यहाँ पर एक छोटा सी पोएम दी हुई है। Let's listen. Kang has a dream. Kang has a dream. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kang woke up with a bang. Here is a poem about kangaroo's imagination or kangaroo's dream. यहाँ पर एक कंगारू है जो सपना देख रहा है और वो अपने सपने को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ लिखा है Kang has a dream, यानी कंगारू का सपना। अब हम देखेंगे कि उसका क्या सपना है। Kang flew into the sky. वो आसमान में उड़ना चाहता है। He flew to the moon. वो आसमान में चांद तक उड़ना चाहता है, वो चांद तक जाना चाहता है। He flew through a cloud. वो बादलों के संग उड़ना चाहता है, बादलों के बीच से जाना चाहता है, बादलों के बीच घूमना चाहता है। He slipped down a tree. वो ट्री से क्लाइंब करना चाहता है, ट्री से स्लिप करना चाहता है, जैसे आप स्लाइड पर करते हो ना, वैसे ये ट्री पर करना चाहता है कंगारू। Kang woke up with a bang. और वो उठ जाता है एक आवाज़ से। ठीक है, ये कंगारू की इमेजिनेशन थी जो उड़ना चाहता है, चांद को छूना चाहता है, बादलों के बीच घूमना चाहता है, और लेकिन उसकी आँख खुल जाती है और उसका सपना वही थम जाता है। ठीक है, here is a game for you, silence game. Close your eyes and hear your teacher say following words: butterfly, myna, fish, elephant, kangaroo. अपनी आंखें बंद करना है और टीचर कुछ सेंटेंस या कुछ वर्ड्स कहेंगे, वो आपको सुनना है केयरफुली। With your eyes still shut, imagine that you are seeing this creature. और जो टीचर आपको वर्ड्स कहेंगे उसको आपको इमेजिन करना है, आप उसके बारे में आपको सोचना है। ओपन योर आइज एंड मूव लाइक इट। फिर आपको आंखें खोलना है और उसकी तरह हरकत करना है। जैसे फर्स्टली आपको आइज क्लोज करना है, टीचर ने आपको कहा है फिश, तो आप इमेजिन करेंगे फिश को। फिश किस तरह करती है आपको वो तो पता है, फिश किस तरह पानी में घूमती है। तो आपको सपोज करना है कि आप फिश हो और आप पानी में तैर रहे हैं। On page number 24, here is an activity. Let's draw. Complete the picture and label them. अब ये पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है, उसको लेबल करना है। यहाँ पर इस एलिफेंट के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको वो यहाँ ड्रॉ करना है और साथ ही उसके नेम यहाँ पर राइट करना है। ओके, द फर्स्ट वन इज दिस। इसे कहा जाता है, वो कुछ इस तरह है, तो इसे कहा जाता है टेल। तो आप यहाँ लिखेंगे टी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे AIL
टेल. ओके, ये हो गई हाथी की टेल. द नेक्स्ट वन इज दिस. ये है ईयर. इस तरह है हाथी के, तो आपको भी बनाना है इस हाथी का ईयर बनाना है. ओके, और यहाँ लिखना है आपको ईयर. नेक्स्ट इज ट्रंक. अभी हमने पोएम में पढ़ा था ट्रंक. यहाँ लिखेंगे आप TRUNK, और यहाँ पर आपको ट्रंक ड्रॉ करना है. इस तरह एलिफेंट की ट्रंक ड्रॉ करना है. ओके, तो अनदर पिक्चर ऑफ कैंगरू. अब आपको कैंगरू के यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है ईयर. यहाँ 2 ईयर है तो इसलिए अपन लिखेंगे ईयर्स, और यहाँ पर आपको कैंगरू के ईयर्स बनाना है. यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. ओके, हियर इज लेग्स. LEGS लेग्स, और यहाँ पर आपको उसके लेग भी बनाना है. तो ये होता है कैंगरू के लेग, इस तरह कुछ. तो आप यहाँ पर इस तरह से कैंगरू के लेग बनाएंगे. ओके, you have to draw like this. Let's move on to the next question. Let's write an act. यहाँ पे आपको लिखना है और act करना है. Fill in the blanks using the hint word given below. यहाँ पर आपको कुछ hints दी हुई है, वो word आपको लिखना है. If I were a kangaroo, I would. अगर मैं कैंगरू हूँ तो क्या करूँगा? आपने किसी पोएम में देखा था हॉक. यहाँ लिखेंगे आप I would hop. आप यहाँ पर लिखेंगे HOP हॉप, यानी कैंगरू तो कूदता है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हॉप. द नेक्स्ट वन इज इफ आई वेयर अ टाइगर आई वुड. तो टाइगर करता है रॉर, जैसे गुर्राता है ना टाइगर, तो यहाँ लिखेंगे आप रोर. ROAR रोर. टाइगर रोर करता है तो हम यहाँ रॉर लिखेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज इफ आई वेयर अ फिश आई वुड. अब फिश है तो हमने देखा था वो क्या कर रही थी, रिगल. आप यहाँ लिखेंगे रिगल. WRIGGLE रिगल. ओके, द नेक्स्ट वन इज इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड. अगर मैं एक बर्ड हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो आई कैन फ्लाई. तो आप लिखेंगे आई वुड फ्लाई, यानी उड़ेंगे, हवा में उड़ते हैं ना बर्ड्स, तो यहाँ लिखेंगे आप फ्लाई. ओके, यहाँ पे आपको वर्ड्स लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है. नाउ हॉप, रॉड, स्विम एंड फ्लाई लाइक दैट. अब आपको यहाँ पे फिश को हमने रिगल लिखा था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्विम, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है स्विम. तो आप रिगल भी कर सकते हो और स्विम भी कर सकते हो. पक्षी की तरफ पानी में तैर सकते हो. यहाँ पर आपको एक्शन करना है. सबसे पहले हॉप का एक्शन करना है, कूदना है. फिर रॉड से करता है शेर, जिस तरह गुजराता है तो आपको वो करना है. स्विम, मछली जिस तरह तैरती है तो आपको वो तैरने का एक्शन करना है. फ्लाई, जब उड़ते हैं तो उड़ने का एक्शन करना है. ओके, हियर आर सम वर्ड्स ऑन पेज नंबर 25. से अलाउड. यू हैव टू से अलाउड दीज वर्ड्स. OC ऑक, TO PUS पस, ऑक्टोपस. यहाँ पे ऑक्टोपस जो एक वर्ड है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ऑक्टोपस. सो यू हैव टू से दिस लाउडली, ऑक्टोपस. अनदर वर्ड इज एलिफेंट. LEFant. The next one is butterfly. 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 Next word is kangaroo. 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 Okay. There is another activity for you. Let's draw. Let's draw. Complete this picture and draw some plants, shell, stone and fish. Complete this picture and draw some plants, shells, stones and fish. यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये एक ऑक्टोपस है. इसकी पिक्चर को आपको सबसे पहले तो कंप्लीट करना है. इस तरह से आप इसको कंप्लीट करें. ये जो डॉट्स है आपको इसको ट्रेस करना है. Only you have to trace these dots
like this. Trace this picture perfectly. There are some dots given to you. Only you have to trace it. So you have to trace like this. The octopus had 8 arms. So there are 8 arms in the picture. Okay. We have traced this shape. Now you have to draw some plants, shells, stone and fish. अब यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स बनाना है, शेल्स बनाना है, सीप बनाना है, थोड़े स्टोन्स पत्थर बनाना है और फिश बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लांट्स। यू हैव टू ड्रॉ प्लांट्स। यू हैव टू ड्रॉ स्मॉल प्लांट्स लाइक दिस। कुछ इस तरह भी प्लांट होते हैं, ग्रास जैसे प्लांट होते हैं वाटर में, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू ड्रॉ सम शेल्स। इस तरह से कुछ सीप जैसे बनाना है आपको। सीप तो आपने बनाना ना, हाँ, इस तरह से कुछ शेल्स बनाना है आपको। Draw some stones. You can draw some stones like this. Now you have to draw fish. छोटी छोटी मछलियाँ बताएंगे फिश किस तरह ड्रॉ करते हैं। आपको इसी तरह फिश ड्रॉ करना। Move on to the next. Let's write. Add full to the words given in bracket and complete the sentence. Add full to the word given in the bracket and complete the sentence. अब इसमें आपको full ये वर्ड ऐड करके वर्ड्स बनाना है। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको आपको full ऐड करके वर्ड बनाना है। You must blank to your friend, तो यहाँ वर्ड दिया हुआ है help, उसके आगे हम लिखेंगे full, ये हो जाएगा helpful। The next one is color, make a color, CLOUR color, उसके आगे आपको लिखना है full, colorful, make a colorful drawing। नेक्स्ट वन इज प्ले, तो आप यहाँ लिखेंगे playful, PLAY play, FUL full, playful। The puppy is so playful। The next is care, तो आप लिखेंगे CARE care, FUL full, careful, be careful while crossing the road। Okay। The next one is join the two words to make one word। Look at the example। यहाँ पर एक वर्ड को आपको मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पीस प्लस फुल, तो वो हो चुका है पीसफुल। द नेक्स्ट वन इज प्ले प्लस फुल, तो यहाँ लिखेंगे आप प्लेफुल, प्लेफुल। द नेक्स्ट वन इज कलरफुल, तो यहाँ लिखेंगे आप कलरफुल। द नेक्स्ट वन इज केयरफुल,
number 27. Write 5 things you can do. Start with I can. यहाँ पे आपको 5 चीज़ें लिखना है जो आप कर सकते हो और आपको वर्ड को स्टार्ट करना है I can. तो सबसे पहले आपको लिखना है I can. I can read. आप पढ़ते हो ना, तो यहाँ लिखेंगे आप I can read. Second one is I can write. आप लिखते भी हो तो यहाँ लिखेंगे आप I can write. Another is I can eat. आप खाना खाते हो ना, तो यहाँ लिखेंगे आप I can eat. Next one is I can sleep. सोते भी हो आप, यहाँ लिखेंगे आप I can sleep. Next one is I can hear. आप सुन सकते हो तो यहाँ लिखेंगे आप I can hear. Okay. Sixth one is I cannot. आप क्या नहीं करते हो? I cannot fly. आप उड़ नहीं सकते. But I can swim. तैर तो सकते हो आप. Okay. I cannot sing. आप गा नहीं सकते. But I can listen. आप गा तो नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हो. I can listen. अब आप और क्या नहीं कर सकते हो? I cannot jump, but I can climb. आप नहीं सकते लेकिन आप चढ़ सकते. Okay. Give yourself a big star for being what you are. Give yourself a big star for being what you are. आपको अपने लिए एक बड़ा सा यहाँ स्टार ड्रॉ करना है, जो आप खुद के होने पर आप प्राउडली फील करते हो ना, उसके लिए आपको एक बड़ा सा यहाँ स्टार ड्रॉ करना है. इस तरह से कर सकते हो. खुद के लिए एक बड़ा सा स्टार बनाना है. ओके. द नेक्स्ट पेज, लेट्स प्रैक्टिस. यहाँ पे कुछ स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है. यू कैन ट्रेस दिस डॉट्स विच इज़ गिवन टू यू. लेट्स प्रैक्टिस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस these words, these letters, cursive small letters given from M to Z. You have to trace it. Okay. Here is our second unit's first poem. The first part is completed. I hope you all have done it perfectly. So take care.